All right, welcome to Super Kalam. This is not going to be an easy journey if you're preparing for UPSC 2026 or 2027. Journey यहाँ से थोड़ी सी टफ हो जाएगी when it comes to science and technology. Why? Because I have understood and I have observed the pattern of UPSC both in prelims and mains in the last at least 5 years. And I've noticed this one thing that science and tech is becoming more and more dynamic. If you think that relying only on NCRTs are going to help you out, you are wrong. If you think relying only on newspapers are going to help you out, again, you are wrong. What is the trend of science and tech? We are going to understand that in this session. What are the sources that you must refer to when it comes to science and technology? What should be your target if you're preparing for science and tech in you for both prelims and mains? And also, what should be a 10-day revision plan? Because if you are preparing for 2026 attempt, you need a revision plan in place. है ना चाहिए होगा. And that is why it is important to watch this session till the very end. ये session आपका कम से कम 6 महीना सेव कर देगा. The next 6 months are going to be really productive when it comes to science and tech if you watch the session till the end. Let's start. First, let's go to the trend of science and tech. When I say trend, that means let's understand now if science and tech is even important from UPSC's perspective or not. Questions kitne aa rahe hain? If there are less number of questions, ROI is very small. We can take it lightly. So let us go through Super Kalam. We'll go to the prelims previous year questions section over here. Here you will see past trends. Click on past trends and you will see over here how many questions subject wise have been asked. Here you will see that there are total 4 core subjects जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी एनवायरनमेंट पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक 13 questions in science and tech that means 26 marks 26 marks are 26 is not a small number. Okay, this was 2025 prelims exam. Let's go to 2024 science and tech again 11 questions that means 22 marks. 2023 here 10 questions that means 20 marks 20 to 26 के रेंज में चल रहा है 2022 15 questions ठीक है that means 30 marks के अराउंड यहाँ से आ रहे हैं then science and tech 13 questions तो that means maximum cap is 30 minimum cap आपका 20 आ रहा है 20 to 30 marks science and tech is alone carrying. That means for prelims, you cannot at any cost skip science and technology. If you are thinking of skipping it, you are wasting your own year. अपना खुद का साल आप बर्बाद कर रहे हो अगर आप सोच रहे हो कि साइंस एंड टेक को स्किप कर देते हैं. Another reality check. Go to the mains section. PYQ practice पे क्लिक करो. Here, let's see how many questions. GS पेपर 3 मेंस होता है साइंस एंड टेक का ऑल ईयर्स की जगह 2025 सब्जेक्ट्स में साइंस एंड टेक. Here you will see 15 marker question in 2025, second 15 marker question, then 10 marker question, 10 marker question, 10 30 marks तो आपके 10 marker question से आ गए यहाँ पर and then there were two 15 marker questions. Total 5 questions were asked from science and tech. Now you can imagine and this is just about 2025. So you can imagine it is important. We cannot skip it first thing. It is important. वी कैन नॉट स्किप इट इसको स्किप तो आप कर ही नहीं सकते एंड वी कैन नॉट ऑल्सो क्रैम इट रिटेंशन बहुत टफ होती है इसकी सो वॉट टू डू इन दैट केस नाउ let's go to the next step which is understanding the source of science and tech. I'm going to give you a very minimal but very effective source of covering science and technology. First, basic NCRTs are important, बहुत important होती है. Now that class 8 की एक new NCRT आई है, I'm writing it down. I have made a session on it. All the important topics I've covered. The link is given in the description box of that video. That NCRT is known as Curiosity. बहुत ही अच्छी NCRT है, उसको जरूर पढ़ना. 8th क्लास की NCRT है. प्लीज डोंट टेल मी दैट NCRTs are tough to cover. ये एक्सक्यूज अब बहुत पुराना हो गया है. You are very mature in the age group of 22 to 30 के एज ग्रुप में आप लोग हो एंड इफ यू आर गिविंग दीज एक्सक्यूजेज दैट एनसीईआरटीज आर वेरी टफ टू कवर हाउ टू कवर देम देन ट्रस्ट मी आपको थोड़ा रीथिंक करना चाहिए इस डिसीजन को दैट यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीएससी बिकॉज एनसीईआरटीज आर नॉट एट ऑल टफ टू कवर.
स्कूल टाइम में, स्कूल लेवल पे जो अपना दिमाग होता था उस लैंग्वेज में एनसीईआरटीज लिखी गई हैं। अगर एट द एज ऑफ 22 प्लस यू आर आस्किंग कि जब हम 10 साल के थे, 12 साल के थे, उस टाइम पर जो किताब पढ़ते थे उसको कैसे पढ़ा जाए, देन ट्रस्ट मी यू हैव टू रीथिंक योर डिसीजन। एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट बिकॉज this is this is bare minimum which is expected out of you as UPSC aspirant. If you ask me, ma'am, M लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े, I understand it is tricky book, लैंग्वेज टफ है, ठीक है। जीसी लियोंग अगर आपको पूछना है, ठीक है, समझती हूँ, बट एनसीईआरटीज, प्लीज देयर शुड बी नो सच एक्सक्यूज। yes, which NCERT to cover can be the question, so I'm telling you which NCERTs to cover. Class 8 NCERT क्यूरोसिटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। देन क्लास 12 की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, बायो एनसीईआरटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक जीन एडिटिंग हो गया, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, देन डीएनए, आरएनए, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू मस्ट कवर, ठीक है। जो बायोटेक रिलेटेड टॉपिक्स इन योर सिलेबस, यू हैव टू कवर देम। Then another important aspect, that current affairs, you cannot skip them. अगर if you are daily covering current affairs, very good. If you are covering it through any esteemed current affair magazine, that is also very good. But current affairs तो cover करने हैं, you cannot skip current affairs. I just showed you how in mains only current affair related questions are getting asked, है ना, तो वो तो cover करना है। Then PYQs, EYQs from 2011 till 2025 if you are preparing for 2026, ठीक है, तो लेटेस्ट प्रीलिम्स के पेपर तक आपको प्रिपेयर करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस, दिस इज फॉर प्रीलिम्स, व्हेन इट कम्स टू मेंस, मेंस में आपको लास्ट 6 इयर्स के कम से कम क्वेश्चन पेपर तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, बिकॉज करंट इज वेरी एक्टिव इन द लास्ट 6 इयर्स, ठीक है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं साइंस में। Then you can supplement it with latest developments by ISRO, by DST, Department of Science Technology, PIB के जो भी latest developments आते रहते हैं, new missions वगैरह आते हैं, that you can cover, वो current affairs से cover हो ही जाता है आपका। That is optional, अगर आपको अलग से PIB की website रोज देखनी है वो ऑप्शनल है, बट करंट अफेयर्स तो आप कवर करोगे, either the Hindu or the Indian Express, that will be covered. Plus on Super Kalam, if you go to current affairs section, every day we are covering both the newspapers, Hindu भी, Indian Express भी। सो देर इज, यू नो, अब तो वो एक्सक्यूज भी चला गया कि हाउ टू रीड द न्यूज पेपर, दैट एक्सक्यूज ऑल्सो यू कैन नॉट मेक, राइट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वन, द PYQs ऑल्सो एंड द करंट अफेयर्स ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द 10-day रिविजन प्लान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू वॉच दिस सेशन बट यू डू नॉट फॉलो दिस प्लान, देन योर टाइम इज वेस्टेड, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ये सेशन देख रहे हो तो इस प्लान को फॉलो भी करोगे। 10-day smart revision plan, smart revision plan, and this plan is very carefully, strategically and in a very structured manner I have created for all of you, ताकि आपका syllabus भी cover हो जाए, revision भी हो जाए। We'll start with day number 1, okay? Day 1 से start करते हैं। Day 1 we are going to dedicate to space technology, okay? In space technology, what are we going to study? We are going to study the ISRO missions, the ISRO मिशन, ओके। इसके अंदर द लेटेस्ट मिशंस लाइक चंद्रयान मिशन आप कवर करोगे, चंद्रयान 3, देन यू कैन कवर आदित्य L1, देन यू कैन कवर गगनयान, ओके। देन जितने भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, द व्हीकल्स विच आर यूज्ड इन दीज सैटेलाइट्स, फॉर एग्जाम्पल PSLV हो गया, फॉर एग्जाम्पल GSLV हो गया, फॉर एग्जाम्पल SSLV हो गया, दैट यू हैव टू कवर। इस वाई एम आई नोटिंग ऑल दीज डाउन, बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज vehicles every year. You just open up the prelims PYQs, you'll find the questions. Then types of orbits and satellites, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, तो आई राइट इट डाउन इफ इन केस यू फॉरगेट, ठीक है। देयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, देयर आर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, देयर आर नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स विच यू हैव टू प्रिपेयर। And then we have, write it down, international cooperation,
कोऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल आर्टिमिस मिशन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज इन न्यूज ऑल्सो। नासा के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट, the NASA के important developments, any kind of important agreement which NASA has entered into with ISRO, that you have to prepare। कोई NASA रिसर्च कर रहा है, कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हम कैसे कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। यहाँ पर ऑन डे वन ना योर फोकस शुड बी ऑन PYQs, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, प्रीलिम्स PYQs, प्री PYQs ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया का स्पेस मिशन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक, कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जा रहा है, तो योर फोकस शुड बी ऑन दैट। ओके, दीज आर द की टॉपिक्स, प्लीज राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देन कमिंग टू डे 2, अब आते हैं हम डे 2 पर। डे 2 में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मिसाइल सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अग्नि, फॉर एग्जाम्पल वी हैव पृथ्वी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव आकाश, वी हैव नाग, वी हैव ब्रह्मोस, ब्रह्मोस भी आ जाता है अपने पास। तो दीज आर इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स। देन इंपॉर्टेंट DRDO इनिशिएटिव्स, DRDO initiatives, okay. Then we have integrated guided missile program, IGMP. Then we have done certain modernization in defense technology। what kind of more modernization, INS विक्रांत में किया है हमने modernization, ठीक है, updations किए हैं, तेजस हो गया। Then we have, write it down, पिनाका, ठीक है, पिनाका मिसाइल में मॉडर्नाइजेशन किया है। देन वी हैव UAVs, UAVs के ऊपर तो 2025 में, 2021 में, 2020 में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, सो यू कैन नॉट स्किप देम। UAVs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस, स्ट्रैटेजिक, राइट इट डाउन, कमांड forces in defense technology, you have to prepare them। Then defense space agency, defense space agency, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोकस ऑन इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, DRDO डेवलपमेंट्स, इन सब पर आपको फोकस करना है, ठीक है। देन कमिंग टू डे नंबर 3, अब हम डे 3 पे आ जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डे 3, जब हम डे 3 की बात करते हैं, here you need to prepare बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड जेनेटिक्स। दिस डे 3 वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जेनेटिक्स, जेनेटिकल डेवलपमेंट और क्रिस्पर, जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली देर वॉज अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर विच इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग क्योर्ड नाउ, ठीक है। सो अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट यू मस्ट प्रिपेयर। तो यहाँ पर DNA, देन RNA के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, हाउ दे फंक्शन, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस। देन यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर CRISPR, then you have to prepare genome sequencing, genome sequencing। अब this is again very very important। क्लोनिंग भी बहुत ही important है, ठीक है। वैक्सीन्स भी उतनी ही important है, DNA and RNA guided vaccines रहती हैं। Then we have intranasal vaccines also, we have mRNA types of vaccines as well। कोविड के टाइम पे जो भी vaccines थी, their working etc you have to prepare। Then stem cells are very important, you know, even in hair treatment, even जो मैंने अभी आपको बताया, a very deadly kind of brain tumor, it is getting cured because of stem cells only, right? So stem cells are very powerful, they can generate new cells, they can replace all the destroyed, or you can say compromised cells, okay। So focus should be on genetic engineering on day 3, genetic engineering पे focus रखना है, ठीक है। इंडिया का वैक्सीन सक्सेस क्या है, हाउ एथिकल इज इट, COVID-19 वैक्सीन एंड द बूस्टर डोज, एथिकली दे रेज्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर पोस्ट application impact was very harmful, so you have to keep all of that in mind। now coming to the next important day, which is day number 4। day number 4 we are going to focus here on nanotechnology। अब थोड़ा AI की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। nanotechnology has been asked a lot of times in prelims, even in mains। यहाँ पर हम मटेरियल साइंस पे फोकस करेंगे।
we are going to focus on material science. ठीक है. Now here you have to prepare basic concepts. क्या basic concepts होते हैं यहाँ पर? The basic concepts like nanoparticles. ठीक है. The basic concepts of nano materials. Write these terms down. देन ग्राफीन के ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है. सो दिस इज आई एम मार्किंग अ स्टार ओवर हियर बिकॉज क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सो यू हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स. यू कैन नॉट स्किप देम. क्वांटम डॉट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, क्वांटम डॉट्स. सो अगेन I am putting star on the topics which have been highly repeated and there are 110% chances they can be again asked. Okay. The next important aspect is application. Nanotechnology का क्या application है? How it can be applied in medicine, how it can be applied in the energy sector, the water purification, because now Delhi is highly polluted. तो वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज किया जा रहा है इवन इन क्लीनिंग द यमुना रिवर, राइट. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद डिफेंस में कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है. देन इंडिया के इनिशिएटिव्स है नैनो मिशन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर. दीज आर इंडियन मिशन, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम. तो यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए ऑन एप्लीकेशंस एंड द इनिशिएटिव्स. दैट इज द कॉमन यूपीएससी मीन्स ट्रेंड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट डे विच वुड बी डे नंबर 5. हमने 5 दिन में डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, बायोटेक कंप्लीट कर ली है. ठीक है. अब डे 5 में वी आर गोइंग टू कवर आईसीटी एंड इमर्जिंग टेक. आईसीटी एंड इमर्जिंग टेक, तो जिसके अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वेश्चन वॉज रिपीटेडली आस्क्ड सिंस 2017. तो आई रिमेंबर आई गेव माई अटेम्प्ट इन 2017 एंड इतना ईजी क्वेश्चन देखकर तो आई वॉज रियली हैप्पी. देन क्लाउड क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है. ठीक है. देन व्हाट इज आईओटी, जस्ट आई टोल्ड यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एआई क्या है, मशीन लर्निंग, व्हाट इज इट, हाउ इज इट गेट बीइंग अप्लाइड. देन क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड. ये तो यूपीएससी के ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू कैन प्रिडिक्ट कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ब्लॉक चेन के ऊपर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. ब्लॉक चेन, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड. ठीक है. एंड प्लस व्हेन इट कम्स टू इमर्जिंग टेक, तो उसका एप्लीकेशन, उसकी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट न्यूज में है पिछले 1 हफ्ते से. ठीक है. सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर ऑन डे नंबर 5. Then coming to the next day, which is day number 6. We have day number 6. Day number 6 we are going to study. First day 5 पे हमने पढ़ा था ICT and Emerging Tech Part 1. यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे ICT and Emerging because it is a big topic. Emerging Tech Part 2. यहाँ पर we'll study 5G, 6G टेक्नोलॉजी. Li-Fi के ऊपर क्वेश्चन आया है. We will study security. We will study data protection पढ़ेंगे. Then we'll study digital India. ठीक है. यहाँ पर METY के schemes हम पढ़ेंगे. India stack क्या है, what exactly is India stack, that we need to prepare. ठीक है. What exactly is deep fake was in news. Cyber warfare क्या है, what is cyber warfare. ठीक है. And what are the privacy concerns with respect to all of these privacy concerns. You have to focus link between ethics plus governance. ये टॉपिक आपका GS3 प्लस GS4 में आता है. इसके एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, साइबर सिक्योरिटी, इंडिया स्टैक, डीप फेक्स एटसेट्रा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट डे विच वुड बी डे नंबर 7. Day 7 would be dedicated to energy and environment technology. You must be asking, ma'am, what exactly is energy technology, environment technology? बहुत सिंपल है. सोलर, विंड, ये सब एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने. टाइडल, हाइड्रोजन एनर्जी. ठीक है. हाइड्रोजन एनर्जी. देन न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर तो एवरी ईयर नाउ दिस ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड, न्यूक्लियर एनर्जी वाज इन न्यूज, राइट. देन एनर्जी स्टोरेज यू हैव टू प्रिपेयर. एनर्जी स्टोरेज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल सेल्स, फॉर एग्जाम्पल बैटरीज. ठीक है. तो ये आपको पढ़ने हैं. इंडिया का एनर्जी मिशन, तो आई जस्ट इरेज इट. यस, इंडियाज एनर्जी
मिशन, एनर्जी मिशंस, नेशनल हाइड्रोजन मिशन यू हैव टू प्रिपेयर, NHM, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, दीज आर टॉपिक्स ऑन विच रिपीटेडली क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड दे आर रिपीटेडली इन न्यूज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हो। Then comes day number 8. Day number 8 would be for medical science. Don't worry, you don't have to prepare medical science in detail. डॉक्टर नहीं बनना है। हेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, हेल्थ टेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन डायग्नोस्टिक। टेलीमेडिसिन का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीमेडिसिन, हाउ एआई इज बीइंग यूज्ड इन हेल्थ, एआई की मदद से ओपन हार्ट सर्जरीज हो रही हैं, ठीक है, हाउ इज इट इज गेटिंग डन। देन उसके बाद वी हैव जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, ठीक है, प्रिसीशन मेडिसिन, इंडियाज हेल्थ मिशंस, ई संजीवनी क्या है, ई संजीवनी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोविन इज इम्पॉर्टेंट, आयुष इनिशिएटिव इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। देन कम्स डे नंबर 9। डे नंबर 9 में रोबोटिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द सब टॉपिक। एंड इसके अंदर क्या पढ़ना होगा आपको, आपने सुना होगा समर्थ स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, समर्थ इनिशिएटिव, ठीक है। PLI फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, PLI इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स क्या है, ड्रोन्स, ड्रोन्स के ऊपर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2017 से पूछा जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर ऑन डे नंबर 9। छोटे ही टॉपिक्स हैं बट PYQs की मदद से यू विल बी इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर देम। देन कम्स डे 10, द लास्ट डे। लास्ट डे वुड बी ओनली फॉर रिविजन, डोंट वरी। तो इसमें आपको मैराथन लगाना है PYQs का। यू कैन जस्ट गो टू सुपर कलाम, वट एवर टॉपिक्स यू हैव प्रिपेयर्ड, वन बाय वन एक स्लॉट लगा लो 2 hours का एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। You can write 5 mains PYQs as well on topics that you have already prepared, ठीक है। तो this is how you have to plan your 10 days. This is how the topic allocation should be done in the next 10 days if you are revising science and technology. Okay, so let me know if it was helpful for all of you. मुझे बताना। और अगर if you want to revise notes and you haven't made any notes, install Super Kalam's app right now. There is the learn section on Super Kalam's app. Just go through the learn section, science and technology के entire notes covering NCERT, standard books, previous year question, pre-mains, everything, current affairs is covered there. अब आपको notes के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। Very concise, revision friendly and very structured notes are given. And after every 2-3 units there is a practice sheet where you can practice questions based on whatever topics you have prepared or revised. तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है साइंस एंड टेक के, आपके खुद के नोट्स नहीं है, यू कैन कंप्लीटली, दैट्स माय गारंटी, रिलाई ऑन सुपर कलाम्स नोट्स। ओके, सो दिस वाज द साइंस एंड टेक स्ट्रैटेजी 10 डे स्मार्ट रिवीजन प्लान। मुझे बताना नेक्स्ट ऐसा कोई प्लान किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए एंड आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।